Hello my dear students, welcome to Petrogate online lecture series. Today I am going to discuss the solutions of Engineering Mathematics GATE Petroleum Engineering 2019. So here question number 1, the Laplace transform of the function ft is equal to e की power minus t is, we have the four options. So we know that the Laplace transform of a function ft, that is Laplace transform of e की power at is 1 upon s minus a. So we want to compute the Laplace transform of e की power minus t, that is Laplace transform of e की power minus t, that is when we compare e की power at with e की power minus t, so a is equal to minus 1. So this will be 1 upon s minus 1. So this is 1 upon s plus 1. So option A is 1 upon s plus 1 whole square. So this is the wrong option. Option B is 1 upon s minus 1. So this is wrong option. Option C 1 upon s plus 1. So this is the correct option because we obtain the Laplace transform of e की power minus t is 1 upon s plus 1. And option 4 is 1 upon s minus 1 whole square. So this is the wrong option. तो इस क्वेश्चन का जो Laplace ट्रांसफॉर्म होगा वो 1 upon s plus 1, that is जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा C होगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. Let small r and theta be the modulus and argument of the complex number z is equal to 1 plus iota respectively. Then r comma theta equals to, तो यहाँ पर भी मेरे पास 4 options अवेलेबल हैं. So as we know complex number z is equal to x plus iota y. जब आप इस मॉडुलस कंप्यूट करेंगे तो mod z is equal to square root of x square plus y square, that is square root of the real part square plus square of the imaginary part square. So मॉडुलस को हमने r से डिनोट करना होगा, that is r को यहाँ पर मॉडुलस गिवन है, that is मॉडुलस also denoted by small r. And argument is theta is equal to tan inverse y upon x. This is the formula for computing the modulus and argument for a complex number z is equal to x plus iota y. But given the complex number z is equal to 1 plus iota, that is when we compare this complex number with x plus iota y, so here x is equal to 1 and y is equal to 1. So जैसे ही आप r कंप्यूट करेंगे सो r इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2. एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन 1. सो ये बनेगा tan इनवर्स 1 एंड tan इनवर्स 1 होता है हमारा tan पाई अपॉन 4. सो यहाँ से इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, सो ये वैल्यू मिलेगी हमें पाई अपॉन 4. बट r कोमा थीटा कितना बनेगा मेरे पास, r कोमा थीटा इज √2 पाई अपॉन 4. सो देखते हैं 4 ऑप्शंस जो गिवन है उसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑप्शन ए √2 कोमा पाई अपॉन 4. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी इज 2 अपॉन पाई अपॉन 2. दिस इज द रॉन्ग. 2 पाई अपॉन 3 इज रॉन्ग. √2 एंड पाई is wrong. So correct option is A. Now next question number 3. Let lambda 1 and lambda 2 be two eigenvalues of the matrix A is equal to 0, -1, 1, 1. Then lambda plus 1 and lambda 1 into lambda 2 are respectively. अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर आपके पास एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है और उसकी 2 आइगन वैल्यूज होंगी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, तो दोनों आइगन वैल्यू का जो सम होगा वो डायगोनल के, दैट इज जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होगा उसके सम के इक्वल होगा. तो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल होगा 0 एंड 1. सो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज sum of the eigenvalues is equal to sum of the principal diagonal elements. So lambda 1 plus lambda 2 is equal to 1. Second one, the product of the eigenvalues of a given matrix is equal to
डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -1 1 1 ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा. और इसको डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को कंप्यूट करने के लिए मल्टीप्लाई कीजिए प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को. मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज 0 0 into 1 माइनस multiplication of the off diagonal element that is 1 multiply by -1. So 0 minus -1 is equal to 1. So यहाँ पर λ1 प्लस λ2 का वैल्यू 1 होगा एंड लैम्डा इंटू λ1 का वैल्यू 1 होगा. तो मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. पहला ऑप्शन 1 and 1, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन 1 and -1, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन -1 and 1, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. एंड फोर्थ इज -1 -1, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. सो sum of the eigenvalues is equal to sum of the principal diagonal elements and product of the eigenvalues is equal to determinant of the matrix. So correct option is A. Next question number 4. Let matrix A is equal to 1 2 2 1, x is equal to 1 0 b 0 and b is equal to 3 1 3 2. If ax is equal to b, देन दी वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, डैट इज हमें यहाँ पर स्मॉल a प्लस स्मॉल b का सम कंप्यूट करना और कंडीशन गिवन है ax इज इक्वल टू b. तो अब आप इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा. आप देखिए ax इज इक्वल टू b मीन्स आपके पास मैट्रिक्स होगी 1 2 2 1, x इज 1 a b 0 एंड b इज इक्वल टू 3 1 3 2. अब लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना आपने. अब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जब भी आप 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स. तो दोनों ही मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की होगी. ये मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर की और ये भी 2/2 ऑर्डर की है. तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज. सो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया. फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम. 1 into 1 is 1 plus 2 into b is 2b. First row multiply with the second column. 1 into a is a plus 2 into 0 is 0. Now second row multiply with the first column. 2 into 1 is 2 plus 1 into b is b and second row multiply with the second column. 2 into a is 2a plus 1 into 0 is 0 is equal to right hand side matrix 3 1 3 2. इसको सिंप्लीफाई किया आपने. 2b plus 1 b plus 2 a 2a is equal to 3 1 3 2. तो ये दो मैट्रिक्स आर इक्वल इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल. सो यहाँ पर इफ वी कंपेयर a is equal to 1, so a is equal to 1, 2a is equal to 2, 2a is equal to 2, so a is equal to 1. यहाँ पर आपने b plus 2 is equal to 3, so b is equal to 3 minus 2, that is b is equal to 1. तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 मिली, यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू 1 है. अगर आप a11 को b11 से कंपेयर करेंगे तो 2b plus 1 is equal to 3 और 2b is equal to 3 minus 1 that is 2 और b is equal to 2 upon 2 is equal to 1. So a का a plus b, a is 1 plus b is 1, so this is equal to 2. So 2 is the value of the sum a and b. Next question number 5. Let vector u is equal to I cap plus j cap plus small a k cap and vector v is equal to a square I cap plus 4j minus 4k cap, where I cap, j cap and k cap are certain unit vectors. That is, along the x-axis unit vector is I cap, along to the y-axis unit vector is j cap and along to z-axis unit vector is k cap. If vectors u and v are परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर दो वेक्टर्स ए u एंड v परपेंडिकुलर है एंड देन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द स्मॉल ए. इफ टू वेक्टर्स से वेक्टर u एंड वेक्टर v आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा. तो वेक्टर ए मेरे पास गिवन है I कैप
प्लस जे कैप प्लस ए के कैप डॉट प्रोडक्ट विद ए स्क्वायर आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टू वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आप करने के लिए आप जानते हैं कि i डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज इक्वल टू 1 एंड रेस्ट विल बी 0, दैट इज i डॉट जे आई डॉट के जे डॉट आई के डॉट जे इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर i डॉट आई, सो ए स्क्वायर आई डॉट आई इज ए स्क्वायर, जे डॉट जे इज 4, के डॉट के इज माइनस 4, ए इज इक्वल टू 0। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 2। डैट इज आपने a को कंप्यूट करना तो a का वैल्यू 2 आपने कंप्यूट किया। सो द वैल्यू ऑफ a when vector u and v are perpendicular, so a value of the a is 2. Next question number 6, the value of the limit x goes to 0 x plus 1 sin x upon x square plus 2x, that is limits आपको given है। अब आपने जैसे ही x को 0 यहाँ पर पुट किया तो 0 plus 1 sin 0 upon 0 square प्लस 2 इंटू 0, डैट इज साइन 0 ये 0, ये 0/0 फॉर्म बनेगी। जब ये 0/0 फॉर्म होगी तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x गोल टू 0 x प्लस 1 साइन x अपॉन डिनोमिनेटर से x कॉमन लीजिए, सो x प्लस 2, सो हम इसको लिखेंगे लिमिट x गोल टू 0 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू साइन x अपॉन x। तो यहाँ पर मेरे पास दो फंक्शन होंगे, लिमिट x गोल टू 0 एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हम इसको लिख सकते हैं बाय ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। सो लिमिट x गोल टू 0 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इंटू लिमिट x गोल टू 0 साइन x अपॉन x। सो ये जो फर्स्ट लिमिट होगी और प्रोडक्ट में सेकंड लिमिट होगी, जैसे ही आप लिमिट दैट इज x को 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई लिमिट x गोल टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 बाई ए प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट। सो 0 plus 1 is 1, 0 plus 2 is 2 and 1 upon 2, that is compute the value of this is राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। सो 1 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 0.50, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स ओवर द इंटरवल 0-4 ओवर द इंटरवल 0-4 आर गिवन इन द टेबल बिलो। दैट इज यहाँ पर x आपको गिवन है 0, 1, 2, 3, 4, एफ एक्स दैट इज y गिवन है 1, 0.5, 0.2, 0.1, 0.06। देन द अकॉर्डिंग टू टेरापेड्रल रूल द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। दैट इज यहाँ पर आपने जो टेबुलर डेटा गिवन है उस टेबुलर डेटा को यूज करके टेरापेड्रल रूल अप्लाई करने के बाद आपने इस इंटीग्रल का वैल्यू करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस कंप्यूट करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंटरवल डिफरेंस h कंप्यूट करूंगा। सो इंटरवल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव आर्गुमेंट्स, दैट इज यहाँ पर ये x0, x1, x2, x3, x4। सो 1 माइनस 0 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 3 इज 1, दैट इज यहाँ पर इंटरवल डिफरेंस h का वैल्यू 1 होगा। नाउ दिस फर्स्ट वैल्यू दैट इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, सो दिस इज डिनोटेड बाई y0, y1, y2, y3, y4। सो आपने टेरापेड्रल रूल अप्लाई करना। सो यूजिंग टेरापेड्रल रूल आई मीन्स आई मेरे पास यहाँ पर 0 to 4 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h अपॉन 2 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द रिमेनिंग। सो h मेरे पास 1 अपॉन 2, फर्स्ट y0 लास्ट y4, सो y0 प्लस y4 प्लस
2 times of the remaining y1 plus y2 plus y3, y1 plus y2 plus y3, तो 1/2 ये वैल्यू मैंने y0 मेरे पास 1 होगा, y4 मेरे पास 0.06 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 इज 0.5, y2 इज 0.2 एंड y3 इज 0.1। इसको सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, सो ये बनेगा 1/2 1.06 प्लस 1.60 और सिंप्लीफाई किया 2.66/2 इज इक्वल टू 1.33। सो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 4 fx dx is equal to 1.33. So this is the value of the integral correct to 2 decimal places. Now question number 8. Question number 8, the general solution of the differential equation d2y by dx square minus 2 times of dy by dx plus y is equal to 0. Here कैपिटल C1 एंड कैपिटल C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पर मेरे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा जो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसका आप नेचर आइडेंटिफाई करेंगे, डैट इज उसकी कौन सी फॉर्म की वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। सो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y बाई डी एक्स 2dy by dx plus y is equal to 0. It means this is a second order लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 होगी, जब आपके पास कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड 0 के इक्वल होगी तो उसका सॉल्यूशन बनता है yx इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड 0 के इक्वल बनेगा तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी 0 के इक्वल होगा। सो ओनली आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्यूट करना, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंप्यूट करने के लिए आप जो भी आपके पास इक्वेशन हो उसको कैपिटल डी नोटेशन में राइट करेंगे, और कैपिटल डी का मीनिंग होगा डी बाई डी एक्स, बिकॉज यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स होगा। तो आपने इस इक्वेशन को लिखा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू 0। सो आपने अब इस इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन कंप्यूट किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन कंप्यूट करने के लिए d को a से रिप्लेस किया, कहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आया एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज एन एल्जेब्राइक इक्वेशन इन m विद डिग्री 2। अब ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन होगी इन m, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 होंगे, दैट इज आप इसको लिख सकते हैं m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आएगी 1,1। इट मीन्स m की 2 वैल्यूज हैं, दैट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द इक्वेशन, और डिग्री यहाँ पर 2 होगी तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 होंगे, दैट इज रूट्स भी 2 होंगे। बट यहाँ पर जो रूट्स का नेचर होगा वो दोनों रूट्स इक्वल हैं, दैट इज m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 1। सो जब भी रूट्स रिपीटेड होंगे किसी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं, सपोज m2 इज इक्वल टू m1, तो यहाँ पर दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा c1 प्लस x टाइम्स ऑफ c2 e की पावर m1x। तो यहाँ पर m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये जो cf होगा यही yx बनेगा, yx इज c1 प्लस x टाइम्स ऑफ c2 e की पावर x। सो यहाँ पर ये मेरा करेक्ट सॉल्यूशन होगा जो आपने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। बट वी हैव द 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x, दो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। y इज इक्वल टू c1x e की पावर x प्लस c2x e की पावर 2x, so this is not correct. And third option is y is equal to c1x plus c2x e की पावर माइनस x, तो this is not correct. And fourth option is y is equal to c1 e की पावर x plus c2x e की पावर x, तो हम इसको लिख सकते हैं c1 e की पावर x plus c2x e की पावर x, that is fourth, that is option D is the correct option for the given problem. Now question number 9. Consider the following system of linear equations where p and q are constants. Equations is x1 plus x2 plus x3 is equal to 1, x1 minus x2 plus 2x3 is equal to p, 3x1 minus x2 plus 5x3 is equal to q. This system has at least one solution for any p and q satisfying
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, सिस्टम हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन, दैट इज सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन। सो इन दैट केस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वी हैव two techniques. Technique 1 is the traditional technique, that is first of all we write the given system of linear equation into the form of Ax is equal to b, and then compute the augmented matrix AB, that is कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए एंड राइट हैंड साइड मैट्रिक्स बी को आप साइड बाय साइड नोट कीजिए, देन वी ऑब्टेन दी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आप विद द हेल्प ऑफ द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके आप जो मैट्रिक्स होगी उसको आप कन्वर्ट करेंगे इन एक्लेन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, और वहाँ पर आप P एंड Q का वैल्यू कंप्यूट करेंगे। तो दिस मेथड इज नोन एज द ट्रेडिशनल मेथड, बट ये कम्पिटिटिव क्वेश्चंस और इसको सॉल्व करने के लिए आप शॉर्ट टेक्निक यूज करेंगे। तो जब भी आपके पास इस तरह का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा तो सिस्टम हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। तो आपके पास सिस्टम है Ax इज इक्वल टू बी, तो यहाँ पर मेरे पास 2 कंडीशन होगी, इफ rank of augmented matrix is equal to rank of the coefficient matrix. If this condition is fulfilled, it means system is consistent, that is system have a solution. Second condition, if rank of AB is not equal to rank of A, then system is inconsistent, that is system has no solution. So according to first, if this condition is fulfilled and if rank of AB is equal to rank of A is equal to number of unknown variables, then system has a unique solution. And if rank of AB is equal to rank of A but less than the number of unknown variables, then system has more than one solution, that is system have an infinite number of solutions. तो ये जो तीनों टेक्निक आप यूज करेंगे ये ट्रेडिशनल मेथड में आप यूज करेंगे। बट मेरे पास जो इक्वेशंस हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 1, x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू p, 3x1 माइनस x2 प्लस 5x3 इज इक्वल टू q। तो मैं यहाँ पर इनिशियली 1 0 0 1, डैट इज जो वेक्टर होगा 1 0 0, इसको मैं इस सेट ऑफ इक्वेशन में पुट करूँगा। तो इनिशियली फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा x1 इज 1, x2 इज 0, x3 इज 0, डैट इज 1 इज इक्वल टू 1। सो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। सेकंड 1 0 0, अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा सेकंड इक्वेशन में x1 इज 1, x2 इज 0 एंड x3 इज 0 इज इक्वल टू p, डैट इज यहाँ पर मेरे पास p का वैल्यू 1 मिला। अब यही सेम वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट करूँगा, 3 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू q, डैट इज यहाँ से q का वैल्यू मेरे पास 3 मिला। अब मेरे पास p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 3 होगा। मेरे पास जो 4 ऑप्शंस हैं ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा कि कौन सी ये दोनों वैल्यू कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो यहाँ पर आप जब ऑप्शन 1 में आपने पुट किया p इज इक्वल टू 1 इज 2, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 2 माइनस q इज 3 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इज 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, डैट इज ये दोनों वैल्यू ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रही हैं। आपने ऑप्शन बी में पुट किया q इज इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 इज 6 प्लस p इज 1 प्लस 1, सो 6 प्लस 2 8, 8 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपने ऑप्शन सी में पुट किया p इज इक्वल टू 1, डैट इज 2, q इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 प्लस 3 इज 5 माइनस 1 इज 4, दैट इज विच इज नॉट इक्वल टू 0। आपने ऑप्शन डी में पुट किया p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू 3, q इज 3 दैट इज 6, p इज 1 प्लस 1 माइनस 1 इज 6 नॉट इक्वल टू 0। तो ओनली ऑप्शन ए में आपने p को 1 एंड q को 3 पुट किया, तो ये ऑप्शन 1 को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज अब मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। बट आपने यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 0 0 पुट किया। अगर आप 0 1 0 पुट करें, आप 0 0 1 पुट करें तो आपके पास p एंड q की डिफरेंट वैल्यूज होंगी, बट वो सारी वैल्यूज ऑप्शन ए को सेटिस्फाई करेंगे। तो इस डिफरेंस दैट इज इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में p एंड q की वैल्यू 1 एंड 3 होंगी, बट हमें p एंड q किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा उसमें ऑप्शन ए होगा। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज
a box contains 2 red and 3 black balls. That is, this question related to probability. 3 balls are randomly chosen from the box, and are placed in a bag. बॉक्स से आपने 3 बॉल्स को randomly चूज किया और एक बैग में प्लेस किया. देन द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स इन द बैग इज, दैट इज, मेरे पास एक ये बैग होगा, बैग में आपके पास 2 रेड बॉल्स होंगी प्लस 3 ब्लैक बॉल्स होंगी, दैट इज टोटल बॉल्स होंगी 5. So we select 3 balls, that is the probability of 1 red ball and 2 black balls is equal to, अब यहाँ पर red ball मेरे पास 2 होंगी, black balls मेरे पास 3 होगी, and we want to compute the probability 1 red ball and 2 black balls. So probability of 1 red ball, so we select 1 from 2, that is 2C1 multiply by probability of 2 black balls from 3 balls, that is 2C3 3C2. This is 3C2 divided by total number of balls is 5. So 5 कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है हमें? 3 बॉल सेलेक्ट करनी है. So 5C3. So 2C1 is 2, 3C2 is 3 and 5C3 is 10. So 2 5 जा 10, 3 upon 5 and this is 0.6. So 0.6 is the probability when we select 1 red and 2 black balls from a box. So this is the correct probability for the given problem. So this is the explanation of GATE petroleum engineering mathematics questions, and thank you very much from Team Petrogate.